Sir, I have one question. That is, what is minimal effects hypothesis? What is minimal effect hypothesis? Okay. When all this media influence related researches started in America, at that time there were two schools, right? One school belonged to used to believe that media has a very good effect on the society, and they used to believe that if something is being propagated by media, suppose election, actually at that time in America, election related researches were done, and they thought that if we promote a thing through media, then it will have an effect on the voters. All these researches this emerged that media can be effective in promoting a thing. After that, second school emerged. That school is called Frankfurt School, right? And Frankfurt School of Thought, that was called. And Frankfurt School of Thought started believing that no, media has no effect. Basically, media is in control of some elite class, and it is used for their benefit only. It is not used for the common benefit. It is used for the benefits of some capitalist class, benefits of some well-to-do class. And so these two viewpoints were there. But at that time when it started, when we were discussing about minimal effect theory, in that theory, it was believed that yes, if through dominant paradigm, if we will trying to use mass media to provide some information to the people, then it will have an effect on the masses. But obviously, here also people started criticizing it, and after that, whatever we discussed, right, Sakshi? Yes, sir, but I did not understand what is minimal effects. Minimal effect means it means whatever it will be, but it will have an effect on the people, right? You must have learned about a theory where viewers, TV viewers are divided into different groups: heavy watchers, less watchers. There is a theory, na? You must have read about this thing, Sakshi. Yes, sir. Huh? And that's why effect will be different in different group. Those who are heavy watchers, who watch TV for more than 5 to 6 hours, they will be more affected by TV, by the thing which are being said by TV. Those who are less watchers, who watch TV for 1 or 2 hours, they will be less affected by TV. So minimal effect theory means it will have certain effect on the masses. If mass media is being used, it will have certain effect on every person. This is why it is said that it is minimal effect theory, right? Yes, sir. Yes, sir. Mhm. ठीक है, और सवाल? Dominant paradigm of development. Abhishek Kumar is asking about dominant paradigm of development. And we discussed it in detail that dominant paradigm is a term which says that if you want to be developed, you have to follow the path of Western world, Western economy, right? And what is the Western economy? Western economy is based on capitalist model of development. It means you will have to adopt capitalism. And capitalism means that you will have to establish big industries, you will have to introduce technology, right? You have to start capital intensive production system. You have to bring ideas of development from Western countries. Your cultural thing, your social thing, all those things are not important for them. And this is what dominant paradigm says. And people at that time, when newly independent countries like India and many other developing countries, they started following that dominant paradigm because
This was the only paradigm available at that time, and all the developing nations tried to bring development to their country. But in 20, 30 years, they started facing certain problems. They started seeing that no, it has certain limitations. And after that, you will find that criticism started and some new alternative theory emerged. So dominant paradigm means that you have to adopt Western model of development. ठीक है अभिषेक, समझ गए? यस सर। हाँ, और कोई सवाल? देखिए, जो भी सवाल आपके मन में आए, छोटे से बड़े, कुछ हम उसको पूछिए। जैसे बताया आपने कैपिटलिस्ट आइडियाज को मतलब अडॉप्ट करना है डोमिनेंट पैराडाइम में, तो ये सर जरूरी है वेस्टर्न से ही मतलब ये आइडिया आएगा? हाँ, ये थियरी यही कहता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड से ही वो थियरी। क्यों? देखिए, आप वर्ल्ड वॉर को देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखेंगे तो जो डेवलप्ड नेशंस को आज भी जो कहे जाते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या अभी तक वही स्थिति है कि यूरोपियन नेशंस, राइट, ईस्ट और वेस्ट आप देखिए, उस हिसाब से देख लीजिए ना। ईस्टर्न कंट्रीज कौन कौन से हैं? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पूरा ईस्ट में आता है। फिर आप देखेंगे इधर इंडिया, एशियन कंट्री जितने हैं वो सब ईस्ट में आ जाता है, आता है ना। यस सर। और वेस्ट में क्या आता है? वेस्ट अगर पूरे पृथ्वी को पूरे उसको दें, और वेस्ट में कौन से आते हैं? यूरोपियन नेशंस आएंगे, अमेरिका आएगा, यूएसए, कनाडा आएगा, ये सब मुल्क आएंगे। तो इस कारण से कहा गया कि भाई आप आइडियाज वहां से, वेस्टर्न कंट्रीज में से भाई उसी वक्त वही कंट्रीज थे जहाँ पे कि बहुत इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ हुआ? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वही वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ। इन सब देशों ने उससे फायदा उठाया, और अमेरिका भी फिर उसमें इमर्ज किया साथ के साथ। तो हमारे यहाँ तो था नहीं, हम तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज थे। तो जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद लगा कि अब क्या करें, आप तो फिर से ट्रेडिशनल सिस्टम में तुम रह नहीं सकते थे, तो कैसे आके डेवलपमेंट आएगा? तो वो आइडिया वेस्टर्न वर्ल्ड से कहा गया कि वहां से आइडिया लिया जाए तो आप डेवलप हो जाएंगे। ये डोमिनेंट पैराडाइम को प्रमोट करने वाले लोग थे, उन्होंने ऐसा कहा, और कई देशों ने उसको अडॉप्ट भी किया, हमने भी किया। और लेकिन ठीक है, उसके कुछ लिमिटेशंस थे, और उस कारण से ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ये फेल हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी भी आप देखें तो अभी की भी स्थिति यही है कि हम कैपिटलिस्ट ही बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े चेंजेज आए हैं। अब इंडिजिनस आइडियाज को भी इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। अब दूसरे तरीके के जो पार्टिसिपेटरी अप्रोचेज हो सकते हैं डेवलपमेंट के, वो भी अपनाए जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा था, माना जाता था कि भैया आपका कल्चर, आपका सोसाइटी, आपका जो समझ है सोसाइटी को लेके, आपके जो तरीके हैं जीने के, वो सब बैकवर्ड तरीका है, उस सबको भूल जाइए और वेस्टर्न तरीके से सब कुछ करिए तो आप डेवलप जल्दी हो जाएंगे। ये उनका बिलीफ था, और इसीलिए उसको उन्होंने प्रमोट किया। ठीक है। व्हाट इज ट्राइडिक कम्युनिकेशन? करुणा का क्वेश्चन है। अच्छा, हाँ, ट्राइडिक कम्युनिकेशन है। तो ट्राइडिक कम्युनिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था उसमें, जिसमें यही कहा गया था कि कम्युनिकेशन ऐसे भी क्या था। कम्युनिकेशन जो अभी जिसमें दो ही चीजें होती हैं, एक तो होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। लेकिन ट्राइडिक कम्युनिकेशन में एक थर्ड फैक्टर भी आ जाएगा, और थर्ड फैक्टर में ये हो जाएगा कि कम्युनिकेशन जो ये होता है फिक्स तरीके से, कि सेंडर जो होगा फिक्स होगा, रिसीवर फिक्स होगा, वो नहीं होगा, वो त्रिस्तरीय होगा। ठीक है। इट मीन्स कि मतलब कम्युनिकेशन का एक मूल मकसद क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचना। तो सेंडर क्या करेगा? कभी कभी वो रिसीवर बनेगा, रिसीवर भी कभी कभी सेंडर बनेगा, एंड थ्रू दिस way they will come to a mutual understanding. So this kind of communication is called triadic communication. कन्वर्जेंस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कह लीजिए, सर्कुलर कम्युनिकेशन इसको कह लीजिए, वो उस तरह का कम्युनिकेशन है। अच्छा राज, व्हाट आर द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फास्टर डेवलपमेंट ऑफ सोशल मार्केटिंग टेक्निक कंपेयर टू क्लासिक मार्केटिंग?
देखो सोशल मार्केटिंग टेक्निक अब क्या था, देखो सोशल मार्केटिंग टेक्निक में आप देखेंगे क्या कि आपको सोशल मैसेजेस को क्या करना है, आपको उसको मार्केट करना है। तो मार्केट करना है तो उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएंगे? डिटर्मिनेंट सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि जो मैंने बहुत सारे स्टेप्स बताए थे कि आपने ढंग से मार्केट रिसर्च किया है कि नहीं किया है, ऑडियंस सेगमेंटेशन किया है कि नहीं किया है, आपने उसके हिसाब से मार्केट रिसर्च के हिसाब से अपना प्रोडक्ट डेवलप किया है कि नहीं किया है। प्रोडक्ट मीन्स आपका सोशल मैसेज, हाँ, उसको प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद उसका फायदा क्या होगा, लोग जो उसको अपनाएंगे तो उसके इंसेंटिव्स क्या होंगे, ये आपने उसमें इंक्लूड किया है कि नहीं किया है। और उसके बाद 4Ps कि भैया उसको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे प्लेस किया जाए, ये सब चीजें आपने उसमें इंटीग्रेट, तो यही सारे उसके डिटर्मिनेंट्स हो गए सोशल मार्केटिंग के। और क्लासिकल मार्केटिंग क्या होता है? क्लासिकल मार्केटिंग और वो मेरे ख्याल से उससे इससे कोई मतलब नहीं है। सोशल मार्केटिंग अप्रोच बेसिकली सोशल मैसेजेस को मार्केटिंग करने के लिए जिस तरह से प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है, उसी तरीके से आपको जो है सोशल मैसेजेस की मार्केटिंग करनी है। और डिटर्मिनेंट्स इसके हो जाएंगे जो आपके स्टेप्स हैं, तो सारे स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं, तो वो उसके डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे। अगर आपने ढंग से फॉलो नहीं किए हैं तो उसका इफेक्ट उस तरीके से नहीं होगा। Sir, when we were discussing 7 C's of communication, there was a point about courtesy, and in which we discussed that message should be biased of the receiver. What does it mean? And earlier you have taught us that we should never be biased. तो क्या था उसमें लिखा हुआ? मैसेज शुड बी Biased of the receiver. बायस लिखा था, और किस पॉइंट के अंदर लिखा था? कर्टसी में शायद है सर। नहीं, वो शायद टाइपिंग एरर होगा फिर। देखो कर्टियस क्या होता है? कर्टियस होता है कि आप कर्टसी एक होती है ना, जैसे कि मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं और आप कुछ कह रही हैं, तो उसमें क्या है, कर्टसी होती है कम से कम दूसरे को फ्रेंडली तरीके से सुना जाए, अपनी बात को भी फ्रेंडली तरीके से कहा जाए। तो उस सेंस में वो कर्टियस होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो कर्टियस होना चाहिए। इट मींस यू शुड बी ओपन टू लिसन टू अदर्स आल्सो, राइट। एंड देन यू, कई बार क्या होता है कि हम सही होते हैं कई बार, और अगला बंदा कई बार क्या होता है कि वो गलत बोल रहा होता है, और हम इस कारण से क्या होता है कि हमें एग्रेशन आ जाता है, एग्रेसिवली हम अपनी बात को उसको थोपने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपने कर्टसी खो दी कम्युनिकेशन। कर्टसी ये है कि ठीक है, वो जो भी बोल रहा है, लेट हिम और लेट हर स्पीक एंड देन ट्राई टू गिव योर पॉइंट टू हिम और हर, ठीक है। तो ये कर्टियस उस सेंस में है, ठीक है। कोई छिपा हुआ हिडन उसमें कुछ, उसमें कई बार होता है ना कि हम हिडन इंसल्ट भी कर देते हैं, इनडायरेक्टली कुछ कमेंट कर देंगे कम्युनिकेशन के दौरान, तो ये कर्टियस नहीं हुआ कम्युनिकेशन। हम कह तो कुछ रहे हैं, छिपे हुए में कमेंट भी कर रहे हैं उस पर, तो ये समझ में आता है लोगों का, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए, है। और हमेशा क्या होना चाहिए कि मतलब बायस अगर यूज हुआ होगा तो वो क्या है कि आपका जो वो है ना, जो आपका रिसीवर है जो सुन रहा है आपको, उसका व्यू पॉइंट क्या हो सकता है उस मसले पे, उसके व्यू पॉइंट को भी अपने मन में आपको रखना पड़ेगा, राइट। एंड आपको इम्पैथेटिक रहना होगा उनकी जरूरत को लेके। तो ये सब जब रहेंगे तो हो सकता है उस सेंस में मुझे देखना पड़ेगा, उस सेंस में यूज हुआ होगा वो शायद कि आप थोड़ा सा बायस्ड रहिए, अपनी बात कोई थोपने में नहीं लगे रहिए, आप बायस्ड रहिए रिसीवर के एंड पे कि भैया उनकी क्या नीड है, उनकी नीड को आप फुलफिल करने के लिए आप वहां गए हैं, न कि अपनी बात को मनवाने गए हैं, राइट। तो इन दैट सेंस मे बी इट इज यूज्ड दैट यू शुड बी बायस्ड टुवर्ड्स रिसीवर्स, राइट। उस सेंस में वो हुआ होगा, लेकिन मैं एक बार उसको चेक करूंगा। अगर इस तरह से क्लैरिटी उसमें नहीं थी तो उसको फिर भूल जाइए। अभी शायद मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी आ गई होगी। Yes, sir. हाँ, ठीक है। और सवाल? सर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एक बार वो बताइए, फुली अंडरस्टैंडेबल नहीं लगा। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी देखो, डोमिनेंट पैराडाइम में जो चीज हमने पढ़ा था ना,
उसी का समझो कि हूबहू मॉडर्नाइजेशन थियरी भी वही बात कहता है, ठीक है। उसमें डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थियरी तो चलो तब भी बहुत सारे स्टेप्स बताता है वो, लेकिन आप मॉडर्नाइजेशन थियरी में जो मूल चीजें हैं वो यही है कि हम इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं। इंडिविजुअल जो होता है उसके साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ जो माइंड है, उस साइकोलॉजी को हम उसको टच करने की कोशिश करते हैं, उसको साइकोलॉजिकली बदलने की कोशिश करते हैं। और कैसे बदलते हैं, तो इसमें एक मोबाइल पर्सनालिटी टर्म आया था। मोबाइल पर्सनालिटी एक टर्म जो यूज किया था लर्नर ने। और मोबाइल पर्सनालिटी कौन होता है? मोबाइल पर्सनालिटी वो होता है जो समाज की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने की काबिलियत रखता है। उन समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए जो सुझाव उसके मन में सबसे पहले आते हैं, और उन सारी चीजों को वो समझने में ज्यादा सक्षम होता है कि यार इस कारण से समाज में परेशानी है। तो ये जो मोबाइल पर्सनालिटी जिनके अंदर होगा वही लोग चेंज के लिए उतारू भी होंगे। तो मास मीडिया क्या करेगा? मास मीडिया इन्हीं मोबाइल पर्सनालिटी जिन के अंदर है उनको टारगेट करेगा। क्यों? ताकि उनका मोबाइल पर्सनालिटी को एक एक्सटर्नल फोर्स मिले, एक्सटर्नल बल मिले। वो कहाँ से मिलेगा? वेस्टर्न आइडिया से मिलेगा। तो मास मीडिया क्या करेगा? वेस्टर्न आइडिया देगा उनको। तो वहां से भी उनको समझ में आ गया, अच्छा इस समाज में समस्या है, चलो इसको ऐसे दूर कर सकते हैं। तो वो जल्दी समझते हैं। वो दे आर वेरी मच ईगर टू चेंज द सोसाइटी, और दे आर वेरी मच capable of finding solution of a problem. Or when these kind of people will get ideas from external source, from mass media, certainly they will get those idea more easily, है ना। तो ये मास मीडिया का यूज यहाँ पे इस तरीके से होगा। और मोबाइल पर्सनालिटी समाज में बाकी लोगों को भी चेंज करेगा। तो इस तरीके से, और यहीं पे आप देखेंगे कि मास मीडिया का इंपॉर्टेंस बताने के लिए बिल्बर श्रेम भी आ गए यहाँ पे। उन्होंने कहा कि मास मीडिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, वो तो साइकोलॉजिकली चेंज करने में यूज आता ही है, लेकिन मास मीडिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये एक मैसेज को मिलियंस तक पहुंचा पाता है बहुत आसानी से, जो कि दूसरे चैनल से बहुत समय लग जाएगा उन तक पहुंचाने में। तो यही तो मॉडर्नाइजेशन थियरी है टोटल। ओके सर। ठीक है सर आपने अभी बताया ट्रेडिक कम्युनिकेशन के बारे में, तो ये अगर किसी पॉलिटिकल लीडर का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा हो तो वो भी तो एक ट्रेडिक कम्युनिकेशन के अंदर ही आएगा? नहीं, कैसे? क्योंकि उसमें सेंडर ये रिसीवर भी बन सकता है और रिसीवर भी सेंडर बन सकता है। उसमें भी नहीं, रिसीवर क्वेश्चन आंसर सेंसर होता है ना उसमें भी? नहीं, तो क्वेश्चन आंसर सेशन तो होता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन में क्या होता है, आप क्लैरिफिकेशन तो सेंडर से ही लेते हैं ना। आप अपना आइडियाज तो नहीं दे सकते उनको, अपनी तरफ से आप आंसर उनको नहीं दे सकते कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये सही है, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। यस, है ना। तो वो टू वे ही, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, वो तो वन वे कम्युनिकेशन है। जी। थैंक यू सर। मिनल, ये रेनेसा और मोबाइल पर्सनालिटी को हम एक नहीं बोल सकते, क्योंकि रेनेसा क्या है ना कि एक ओवरऑल सोसाइटी को बदलने की एक तरीका है। मोबाइल पर्सनालिटी तो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक हो गया आदमी का, और रेनेसा तो एक पूरे आंदोलन का नाम है कि कैसे वेस्ट में एक समय आया 14th सेंचुरी में, जब लोगों ने वो जो मिडिल एजेस का जो एक चीजें हुआ करती थी बेकार, जो भी मतलब एक गलत सोच और गलत तरीके से हमने, और चर्च का कंट्रोल जिस तरीके से बढ़ गया था सोसाइटी पे, उससे बाहर निकलने की जद्दोजहद थी। और उस जद्दोजहद में क्या हुआ कि कई सारे नए आइडियाज लिए उन्होंने, और उसको पुनर्जागरण कहते हैं। और उसी कारण से आप देखेंगे कि वहाँ पे धार्मिक सुधार हुए। धार्मिक सुधार होने के कारण क्या हुआ कि लोगों को अधिक आज़ादी मिली, काम चर्च के कंट्रोल से जब बाहर निकले तो ज़्यादा फ्रीडम से उनको काम करने की आज़ादी मिली। तो साइंटिफिक रिवोल्यूशन होना शुरू हुआ, क्योंकि ओपन माइंड ही कुछ खोज सकता है ना। तो साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुए, और साइंटिफिक रिवोल्यूशन होने के कारण ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। तो ये रेनेसां ने ही एक तरीके से इनिशिएट किया ओवरऑल, आप देखेंगे वेस्टर्न डेवलपमेंट को। तो एक पूरा प्रोसेस, रेनेसां तो एक आंदोलन है, और मोबाइल पर्सनालिटी तो आप समझ लीजिए कि कैरेक्टर्स। हाँ, लेकिन ये आप जरूर कह सकते हैं कि जो मोबाइल पर्सनालिटी है, जिस व्यक्ति के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो रेनेसां से ज्यादा प्रभावित होगा। रेनेसां के द्वारा जो
जिस तरीके की थॉट प्रोसेस रेनेसां में हो सकती है, उस थॉट प्रोसेस में वो शामिल हो सकता है आसानी से। रिलीजन स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, सोशलिज्म स्टेट इज ए नेसेसरी। अच्छा, ये देखो संग्रीला पूछ, देखो क्या है ये कि ये जब स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, बेसिकली आप देखेंगे तो स्टेट कैसे बना। मुझे बेसिकली अभी एक बोर्ड चाहिए था ताकि मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा पाता। यस सर, यस सर। देखो तो क्या है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, राइट। अब देखो शुरू में अगर आप पूरे आप सोशल इवोल्यूशन की बात करें तो सोशल इवोल्यूशन किस तरीके का हुआ। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये एक मान लीजिए, इसको एक मान लेते हैं हम कि ये हाउस होल्ड सेक्टर था पहले हमारे पास, ठीक है। फैमिलीज यहाँ रहती थी और एक जो होता था मार्केट होता था, ठीक है। ये मान लो, इसको मैं F लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये हो गया M, दैट इज मार्केट, ठीक है। अब क्या है कि ये मार्केट मीन्स कि यहाँ से जो वर्क फोर्स है, ये वर्क फोर्स यहाँ आता था काम करने के लिए, ठीक है। और इस काम के बदले में क्या होता था, इनको यहाँ पे पेमेंट मिलती थी, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ काम करते थे तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज भी पैदा होता था मार्केट में, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे जी कर देता हूँ ताकि समझ में आपको, जस्ट गुड एंड सर्विसेज, ये हो गया लेबर, ये हो गया पेमेंट, ठीक है। और गुड एंड सर्विसेज जो यहाँ पैदा होता था, इसको कंज्यूम कौन करता था, तो कंज्यूम अगेन ये फैमिली ही करती थी, मतलब जो हाउस होल्ड है, ठीक है। और इसके बदले में क्या करते थे ये, इसके बदले में फिर क्या, इसका जो कॉस्ट होता था ये फैमिली वाले ये कंज्यूम करते थे इसको, और इसके बदले में फैमिली वाले फिर क्या करते थे, इनको रीपेमेंट करते थे, ठीक है। दैट इज आरपी, रीपेमेंट कर लो इसको भैया, आरपी। अब देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो आप देखें कि कोई जरूरत नहीं है, ना तो हमें बैंक की जरूरत है, ना तो हमें गवर्नमेंट की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं। दिक्कत कब आती है, दिक्कत तब आती है जब ये फैमिली वाले और ये मार्केट चलाने वाले दोनों ही क्या करें कि सेविंग करने की कोशिश करें, और सेविंग को फर्दर कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करें कि भैया हम सेव करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, बहुत तरीके की चीजें दिमाग में आती हैं। तो क्या होता है, यहीं पे फिर मार्केट वाले इनको कम पेमेंट देने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले उसमें बाद में आएंगे। तो दोनों सेविंग करना चाहेंगे, तो जब सेविंग करना चाहेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, एक बैंक आ जाएगा। इसका समझ लो कि ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अब खड़ा हो गया सोसाइटी का, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, देखोगे तुम कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ठीक है। ये हो गया मान लो बैंक, ठीक है। अब लोग यहाँ पे पैसा डालेंगे, फैमिली वाले भी पैसा डालेंगे यहाँ पे, हाउस होल्ड, और ये मार्केट वाले भी पैसा डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों सेविंग डालेंगे, और सेविंग के बदले में इनको क्या मिलेगा, इनको इनके बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इनको भी इंटरेस्ट मिलेगा। चलो अब तीन स्ट्रक्चर देखो खड़े हो गए, है ना। देखो कैसे कॉम्प्लेक्स होता है। अब क्या है कि जो हाउस होल्ड वाले हैं वो भी क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं वो काम कम करना चाहेंगे और पेमेंट ज्यादा लेना चाहेंगे। मार्केट वाले क्या करेंगे कि ज्यादा काम करवाना चाहेंगे, कम पेमेंट देना चाहेंगे।
तो ये जो आपसी जो झगड़े शुरू होते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट को लेके जो झगड़े शुरू होते हैं, तब क्या होता है कि हाउस होल्ड, बैंक, मार्केट, ये सब मिलके कहते हैं कि भैया हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जो इंस्टीट्यूशन हम सबको गवर्न करे, हम सबके लिए रूल बनाए, हम सबको रेगुलेट करे। और यहीं पे क्या हो जाता है कि स्टेट आ जाता है। ठीक है, और स्टेट क्या करेगा? लॉ बनाएगा इनके लिए, लॉ बनाएगा इनके लिए, और लॉ बनाएगा इनके लिए। और बदले में क्या लेगा ये? बदले में ये लेंगे टैक्स। ठीक है, सबसे, इनसे। अब देखो क्या है, अब ये क्यों शुरू हुआ? अब मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स कहता है सोशलिज्म में, सेंग्रिला, स्टेट इज एन अननेसेसरी इविल। ठीक है, बाद में समझ में जब, क्योंकि मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि भैया हम समानता स्थापित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्केट पे किसका कंट्रोल है? मार्केट पे कैपिटलिस्ट का कंट्रोल है, और कैपिटलिस्ट का कंट्रोल है तो अपने हिसाब से स्टेट को रन करता है, क्योंकि स्टेट को इन्फ्लुएंस सब करना चाहते हैं। मार्केट भी इन्फ्लुएंस करना चाहेगा और ये भी इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि दिक्कत आती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि स्टेट की जरूरत ही नहीं है, स्टेट तो जो कैपिटलिस्ट है उनके हाथ में एक टूल बन गया है, इसलिए अननेसेसरी बिल है, गैर जरूरी ये चीज है, इसको एकदम खत्म कर देना चाहिए। और स्टेट नहीं रहेगा तो समानता फिर से स्थापित हो जाएगी। समानता मतलब फैमिली और मार्केट जिस तरीके से पहले चलता था वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब ये जो कैपिटलिस्ट हैं वो कहते हैं स्टेट इज ए नेसेसरी इविल। वो कहते हैं स्टेट एबिल तो है, क्योंकि स्टेट क्या करता है? कंट्रोल करता है सबको। कैपिटलिस्ट को भी कई बार कंट्रोल करता है रूल बना के कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, फैमिली को भी वो करता है। तो कहते हैं कि वो एबिल तो है, उसकी जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए, हमारे प्रगति में कई बार बाधक भी होता है, क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट कभी बन जाता है, कभी इक्वलिटेरियन बन जाता है, कभी वेलफेयर स्कीम्स लेके चला आता है गरीब लोगों के लिए, है। तो वो कैपिटलिस्ट ये नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि नेसेसरी है। वो नेसेसरी इसीलिए है कि अगर स्टेट नहीं होगा तो फिर क्योस मचेगा, और कैपिटलिज्म तो चल ही नहीं पाएगा स्टेट के बिना। क्योंकि कैपिटलिज्म चलाने के लिए आपको कोई ना कोई एक रेगुलेटिंग फोर्स चाहिए। तो अब आप समझिए दोनों होगी, कैपिटलिस्ट कहते हैं कि स्टेट इज नेसेसरी और सोशलिस्ट कहते हैं कि स्टेट इज एन अननेसेसरी। बिल्कुल, स्टेट नहीं होगा तब जाके हम समानता स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि स्टेट भी एक टूल बन गया है कैपिटलिज्म के हाथों में। ठीक है, समझ गए? यस सर। अब क्लियर है? यस सर। हाँ, ये डिफ्यूजन एंड इन्वर्जन थ्योरी में 5 एडॉप्टर कैटेगरी, हाँ वो तो क्लियर है। वो तो देखो 5 कैटेगरी है। एक तो इनोवेटर्स की कैटेगरी है, फिर अर्ली अडॉप्टर्स की कैटेगरी है, फिर अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी एंड लेगार्ड्स। 5 कैटेगरीज हैं। और इनोवेटर्स वो होते हैं जो कि वही लोग बेसिकली न्यू आइडियाज को जन्म देने वाले लोग होते हैं, और अगर नहीं भी होते हैं तो ये लोग तुरंत नए आइडिया को अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्ली अडॉप्टर वो हो गए जो कि इनोवेटर के बाद आते हैं, कि भाई वो भी बहुत ईगरली, इनको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है अर्ली अडॉप्टर्स को, जिसमें कि उनको लीफलेट चाहिए होगा कि हाँ भाई ये कोई नई सर्विस शुरू हो रही है, इतना ही उनके लिए काफी होता है। एंड दे ट्राई एंड दे फाइंड कि यस दिस इज गुड सर्विस एंड दे अडॉप्ट इट। दे ट्राई बाय देयर ओन टू सी वेदर इट इज बेनिफिशियल और नॉट। उसके बाद अर्ली मेजोरिटी आते हैं जिनको कि चाहिए थोड़ा सा रिजल्ट। अर्ली अडॉप्टर्स ने जो लिया है उन वहाँ दिखेगा कि नहीं भैया चलो हाँ फायदा हो रहा है, तो ये अर्ली मेजोरिटी वाले लोग उस वक्त बढ़ेंगे कि हाँ चलो ठीक है यार हम भी इसको करके देखते हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन कि वेदर they are hearing good about a particular technology or innovation or not, they are seeing good result or not, this is based on that. So early majority हो गए। late majority हो गए जो कि they are forced to adopt a new thing। if कर ही लो अब तो कोई ठीक है, या इसका मतलब फायदेमंद है तभी तो सब कर रहे हैं। तो इस तरीके के लोग होते हैं जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते, और जब सब जगह जब सब यूज करने लग जाते हैं तो देन दे कि चलो अब हम भी कर लेते हैं। और लेगार्ड्स तो वो हो गए जो कि कंजर्वेटिव एटीट्यूड होता है उनका उस इनोवेशन के प्रति, उस थॉट के प्रति, और वो उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। और उनको अडॉप्ट करवाने के लिए क्या होता है कि बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं लेकिन उनके लिए एक अलग अलग तरीके का स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा,
उनको अलग तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके हो सकता है कि कुछ लोग अडॉप्ट कर लें, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि तब भी कुछ परसेंटेज ऐसे रह ही जाएंगे जो अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो ये है 5 कैटेगरी। Sir, in 5 stages of diffusion, ITA is there. Can you please explain it by taking an example? आइटा, देखो आइटा तो सबसे पहले ये बताओगे AIETA, that is आइटा, and A for awareness, I for interest, E for evaluate, T for trial, and then final adoption or rejection। यही है आइटा मॉडल। आइटा का ये अवेयरनेस मतलब यू डोंट नो अबाउट अ थिंग एंड यू फर्स्ट गेट अवेयर ऑफ अ थिंग। Take the example of this WhatsApp. Suppose you go to a village and you find that people don't use WhatsApp, and it is very easy messaging facility with some other features also. You can share photos, you can share videos, you can remain connected with your friends and family, if not used for social cause or social networking. Then also you can use Facebook to remain connected with your family and friends, and there is a video call, a group call, all these facilities are available with WhatsApp. So suppose people don't know about this facility, and you go there and you first get them aware about all these things, right? So they will get aware, and after knowing the thing, they might get interested. Some people might not get interested. There are several reasons behind they don't get interested. So forget about that. Suppose interested. So this is second level. When they will get interested, then they will go for third stage. They will start evaluating the thing whether it is beneficial for them or not. किस तरह से evaluate करेंगे? वो देखेंगे कि भैया उसका कॉस्ट क्या पड़ेगा अगर व्हाट्सएप हम यूज करेंगे, अगर उसके लिए स्मार्टफोन चाहिए होगा, और उसका फायदा क्या होगा, जो उनके फैमिली फ्रेंड्स में जितने लोग हैं उन सबके पास स्मार्टफोन है कि नहीं है। सो ये सब इवेल्युएशन करेंगे वो, कि अगर सबके पास है नहीं तो उनके पास रह के भी क्या होगा, हाउ कैन दे रिमेन कनेक्टेड। सो आफ्टर इवेल्युएशन तो कई बार क्या होता है, किसी भी स्टेज पे वो छोड़ सकते हैं उस पूरे के पूरे प्रोसेस को। हो सकता है इवेल्युएशन लेवल पे भी उनको लगे कि नहीं कोई इसका फायदा नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, नहीं ये हमारे लिए नहीं। अगर इवेल्युएशन के बाद उनको लगा कि नहीं उनके लिए बेनिफिट है, दे विल ट्राई, दे विल download WhatsApp and they will try to connect with people. They will see कि भाई कितना अच्छा है ये, बुरा है ये, and if they find it beneficial, if they find it yes it is good, then they will finally adopt it. And if they find it disturbing, right, so many people find it disturbing. So suppose they find it disturbing every time notification is coming, or you have nothing to talk, but because this facility is available, so you keep talking. So this is also, so I mean after getting into the trials, it may be disturbing for their daily work. So इन सब को देखने के बाद और ट्रायल के बाद या तो अडॉप्ट करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। अडॉप्ट कर लेंगे तो आपका ये इनोवेशन जो है, जो तो आपने एक सोशल मैसेज को अडॉप्ट करवाने के लिए जो कैंपेन किया वो सक्सेसफुल होगा, और अगर नहीं अडॉप्ट किया तो वो फेल हो जाएगा और रिजेक्ट कर देंगे। तो ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि भैया वो कितना इंटरेस्टेड होते हैं, और ये सारे स्टेप्स हैं। ठीक है सर, आइडिया के टर्म में इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? आइडिया कोई भी आइडिया ले लो। जैसे आइडिया मान लो किसी को गांव में जाओ, तुम कहो कि भैया क्या है कि तुम कह लो मदर्स जो हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको कहो कि तुमको जो ऐसा है भैया कि ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाना चाहिए। सपोज दिस इज द आइडिया। तो आप ये सबसे पहले तो क्या होता है कि गांव में हो सकता है पता ही नहीं हो कि क्या खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको आप देख लीजिए सारे स्टेजेस पे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसको अडॉप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। कई बार तो अच्छी चीजें भी लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छी चीजों को भी कहेंगे कि ये करना चाहिए, तो लोग आप कैसे मास्क ले लो ना, कि मास्क है वो पहनने के लिए कि बचे रहोगे, तो आप जाके गया में घूम लो। गया में लोगों को लगता है क्या फालतू ऐसे कुछ नहीं होता है, ईश्वर के हाथ में जीना मरना। तो भैया वैसे भी लोग हैं, अब रिजेक्ट कर दिया। आइडिया तो अच्छा है कि आपको पहनना चाहिए मास्क, लेकिन लोग नहीं पहनते हैं। तो ऐसा थोड़ी है क्यों नहीं जान रहे हैं, अवेयर भी हैं
हो सकता है इंटरेस्टेड ना हो, बहुत परेशानी तो है मास्क पहनने में। और एक्चुअली क्या है ना कि हमारे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ हमेशा आप देखेंगे कि मैस्कुलिनिटी को पूजा जाता है शुरू से ही, और डिफाइंग अ थिंग is equal to masculinity. If you defy you are not wearing mask, it means you are masculine, you are hero kind of thing. This is also a feeling among people, I think. So अब इस कारण से भी लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्या कहा जाए, आप तो जवान लोग जब बीमारी लगती होगी तो पता चलता होगा। तो ये कोई मैस्कुलिनिटी पूजने वाली चीज है नहीं मेरे हिसाब से। और प्रेमचंद ने तो कहा था कि भैया पुरुष अगर स्त्रियों के गुण धारण कर लें तो वो देवता के समान हो जाएंगे। इट मीन्स फेमिनिन कैरेक्टर अगर वो धारण करें, मतलब दया, करुणा, ममता, ये सब उनके अंदर हो तो वो देवता तुल्य हो जाएंगे। लेकिन अब यही दिक्कत है कि हमारे समाज देखते हैं सड़क छाप जो हीरोगिरी करते रहते हैं, क्या है फालतू। उनको लगता है कि मैस्कुलिन होना जो है वो बहुत मैंने समाज में लाइक किया जाता है, और शायद सोसाइटी ऐसी ही रही है। तो मास्क नहीं पहनना लगता है कि हाँ दे आर हीरो। तो अब इसको देखो तुम आइटम में स्थापित करोगे कहाँ पे, किस लेवल पे जाकर दिक्कत हो रही है। तो ये तो तुम कई सारे आइडियाज को ना खुद से ही कोशिश करो सोचने का। और मैं खैर ये दूंगा भी तुम लोगों को, अभी असाइनमेंट अभी पहले खत्म हो जाए 2 दिन पैराडाइम, तो मैं कुछ क्रिएटिव असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को, जिससे कि समझ में आएगा कि कैसे आप खुद जब करेंगे ना तो समझ में आएगा कैसे कैसे अच्छी आइडियाज भी फेल हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो अभी देखती रही हो कि निगेटिव आइडियाज भी इतने चलन में है, और उसको मानने वाले लोग समझते हैं कि वाह वाह हमें हीरो है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो आइडियाज नेगेटिव है। तो ये सब Sir, is 5 adopters category for communication technology only? 5 adopters category is given by Rogers, right? And these categories were developed by doing some researches in various parts of this world, right? So he gave this 5 adopters category, and it is used in several things, in health communication, in behavioral change. Everywhere people try to implement and try to see the population according to these categories, but it is not a कहते हैं ना फिक्स काइंड ऑफ कैटेगरी नहीं है, और इट इज नॉट द ओनली कैटेगरी। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं ये इस तरह से कैटेगराइज करना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये रोजर्स ने ये दिया है तो उनका है ये, तो उसको तो हम रोजर्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसको उसी तरीके से जानना होगा। सर ये आइडियाज वैल्यूज वगैरह के लिए भी है या मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? नहीं देखो कई जगह बोला ना मैंने कि हर कई सारे रिसर्च में 4000 से ऊपर तक रिसर्च हो चुके हैं इस रोजर्स के आइडियाज को लेके। और वो हेल्थ कम्युनिकेशन हो गया, बिहेवियरल चेंज हो गया, सोशल साइंसेस में सोशोलॉजी में हो गया, कई जगहों पे इसको यूज करने की कोशिश की गई है, और कई जगह पे माना गया कि नहीं ये इस तरीके से ये काम करता है। कैटेगरीज है सोसाइटी में, कुछ लोग जल्दी चीजों को अडॉप्ट करते हैं, कुछ लोग एकदम अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो ये तो है। लेकिन एक्यूरेट जो परसेंटेज इन्होंने दिया है जरूरी नहीं है कि यही परसेंटेज हर जगह आपके सामने आए, हो सकता है इसमें वैरी करेगा ये। ठीक है, ओके सर। सर इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि इनोवेटर्स एक्चुअली आइडिया क्रिएटर्स भी हैं बेसिकली वो, ठीक है। इनोवेटर्स आर आइडिया क्रिएटर्स बेसिकली, they innovate new thing, they give new idea to the societies, right? और कहाँ से वो देंगे आइडिया भैया, क्योंकि ये तो आइडिया जाहिर सी बात है जो बाहर से आइडिया आ रहा है उसके बेस पे वो कुछ नए आइडिया देंगे। तो वो लोग होते हैं जो सोसाइटी में बिरले कम परसेंटेज 2.5 से 3% लोग होते हैं जो इस तरह के नए आइडिया समाज को देते हैं। तो एक तो ये हो गया अंतर। और अर्ली अडॉप्टर हो गए कि वो आइडियाज को जल्दी अडॉप्ट करते हैं, जो भी नया आइडिया आ गया है उसको जल्दी अडॉप्ट करते हैं। ये अंतर। सर ये तो एडॉप्टर्स कैटेगरी में आ रहे हैं, तो फिर ये देते कैसे हैं? हाँ देखो ये वही है ना कि देते इसलिए हैं कि देखो वेस्टर्न आइडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये डिफ्यूजन इन्फ्लुएंस थ्योरी क्या है कि एक्सटर्नल सोर्स से ये आइडियाज लेंगे, ठीक है। अब एक्सटर्नल सोर्स से आइडिया लेंगे तो कॉमन आइडिया लेंगे, इसलिए हमारे समाज में एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लो
एक वेस्टर्न आइडिया आया कि कंजर्वेटिव एटीट्यूड को, ट्रेडिशनल सेटअप को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक मॉडर्न नहीं होंगे। ये मान लो एक कॉमन आइडिया आया। अब इनोवेटर्स वो होंगे जो कि इस कॉमन आइडिया के बेस पे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के हिसाब से आइडिया जनरेट करेंगे सोसाइटी के लिए। ठीक है, ये अंतर है कि भाई आप पता चलता है, मान लो विमेन एम्पावरमेंट हमारे समाज में नहीं हो रहा है, या गांव में विमेन जो है वो बाहर ज्यादा नहीं निकलती हैं, घूंघट में रहती हैं। तो क्या है, ट्रेडिशनल सेटअप है। इससे बाहर निकालने के लिए आप विमेन सेंट्रिक जो आइडिया देंगे वो इनोवेटर्स हो जाएंगे। लेकिन जो वेस्ट से जो आइडिया है वो तो कॉमन आइडिया है ना। ओके सर, थैंक यू। हाँ, और बोलो, और कुछ सवाल हो तो। मेरे ख्याल से क्लैरिटी आई होगी। इतना सब हम लोगों ने कई सारी चीजें डिस्कस की, एंड थैंक्स टू दोज पीपल हु आस्क्ड क्वेश्चंस। और आप एक्चुअली मैं ये मानता हूँ कि आप सबने सभी पूरी क्लास के बिहार पे सवाल पूछा और सबने सुना है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो दे कैन आस्क, अदरवाइज आई थिंक वी कैन एंड द क्लास। क्या बोलो? Adam talked about invisible hand of capitalism in his book. Sir, please explain. हाँ, ये Shangri-La जो है ना भाई, I am really impressed by your question, and it shows that you are studying things. And yes, Adam Smith invisible hand देखो ये है कि वो ऐसे देखो मार्केट में जब तुम जाती हो, तो आज गए तो आज पता चला कि टमाटर 20 रुपए किलो है। अगले दिन गए तो वो हो गया 25 रुपए किलो। फिर तीसरे दिन गए तो पता चला हो गया 35 रुपए किलो। और चौथे दिन गए तो हो गया 10 रुपए किलो। Who is controlling this price? Who decide that किस दिन में ये क्या रेट होगा? हाँ, और देखो ये सिर्फ यही नहीं है कि कम सामान है तो उसका रेट ज्यादा होगा, ये भी नहीं है। इट डिपेंड अपॉन डिमांड्स। कई बार क्या होता है कि सामान ज्यादा होता है मार्केट में, लेकिन उसकी डिमांड्स नहीं होती है। अब जैसे कि आप देखो कि एक जितिया पर्व हुआ था, अब उसमें कुछ खास तरह का साग वाग घर में बनता है, और ऐसे कोई नहीं खरीदता उसको, लेकिन उस दिन वो साग 60 रुपए किलो 80 रुपए किलो बिकता है। तो डिमांड से भी फर्क पड़ता है, सप्लाई पे बेस्ड नहीं होता है प्राइस कंट्रोल। तो डिमांड सप्लाई के कारण जो प्राइस कंट्रोल इधर उधर होता है, ये कौन करता है? तो कहता है कि देयर इज एन इनविजिबल हैंड, है ना, वो कंट्रोल करता है। तो पूरे कैपिटलिज्म में जो मार्केट मैकेनिक्स है, जो मार्केट जिस तरीके से चलता है सप्लाई और डिमांड के हिसाब से, उसी को उन्होंने कहा है इनविजिबल हैंड। ठीक है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, पुराने समय के थे। उन्होंने कहा कि सपोज एक ब्रेड मेकर है, एक कैंडल मेकर है, और एक मीट वाला है, एक बूचर है। अब क्या है कि ब्रेड वाला अपना ब्रेड बनाता है, कैंडल वाले अपना कैंडल बनाते हैं, और मीट वाला अपना मीट प्रोड्यूस करता है। और ब्रेड वाले का भी सारा ब्रेड बिक जाता है, मीट वाले का भी सारा मीट बिक जाता है, और कैंडल से बिक। तो कैसे पता चलता है उनको कि कितना आज ब्रेड बनाना और कैसे क्या करना है? एंड इट इज हैपनिंग, और हु कंट्रोल्स इट? सो वो कहता है कि देयर इज एन इनविजिबल हैंड हु कंट्रोल्स इट, कि भैया हाँ सब कुछ हो रहा है। तो ये कैपिटलिस्ट मार्केट सप्लाई, डिमांड सप्लाई के बेस पे जो सारा सिस्टम चल रहा है ना, उसी को उन्होंने इनविजिबल हैंड कहा है। जबकि सोशलिज्म में क्या है? सोशलिज्म में स्टेट कंट्रोल है ना, सारा चीज स्टेट प्राइस कंट्रोल करता है, स्टेट प्रोडक्शन कंट्रोल करता है। कैपिटलिज्म में स्टेट का इन्फ्लुएंस ही नहीं है, तो हु कंट्रोल्स इट? तो ही सेड यस, इनविजिबल, देयर इज एन इनविजिबल हैंड दैट कंट्रोल्स इट। ठीक है संगीला? यस सर। तो वो इनविजिबल हैंड कैपिटलिस्ट, गॉट इट? यस सर। हाँ, कैपिटलिस्ट, एडम स्मिथ कैपिटलिस्ट, एडम स्मिथ हाँ, कैपिटलिस्ट जिन्होंने, हाँ कैपिटलिस्ट थ्योरिस्ट हैं ये। अच्छा,
अब श्रीनिवास मेलकोटे क्या है कि उसको तो सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से पढ़ो उसको अनुराग, जो टॉपिक हम लोग कवर करते जा रहे हैं वो सारा टॉपिक उसको पढ़ो तो ज्यादा समझ में आएगा। उस तरीके से पढ़ोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और कुछ सवाल रहे, कुछ समझ में ना आए तो फिर पूछ ले भाई हमसे, वो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाल सकते हो, फोन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, फिर मेरे ख्याल से सवाल आपके अब खत्म हो गए। तो संग्रीला फिर कुछ पूछ देगी है भी सा, अब फिर हमको खोल के बनाना पड़ेगा कुछ। नो सर, हो गया। चलो ठीक है फिर, है बाय बाय।